collection. So we have a question is, what is the collection is here? What is the collection? We can say collection is a collection is a collection is collection is a combination of a different type of a data in unlimited size. Right. What is the collection? We can say collection is a combination of a different type of a data in unlimited size. Right. Basically collection क्या है? अलग अलग डेटा का क्या होता है? कलेक्शन होता है. राइट. आप किसी भी टाइप का डेटा कलेक्शन में स्टोर कर सकते हैं और कोई साइज की लिमिटेशन नहीं रहती है. आप चाहे उतना डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Collection is a combination of a different type of a data in unlimited size called as a collections. Is it clear? फिर कैसे आप देखिए, किसी ने कभी अगर आपसे पूछा, right, why use the collection, right? या बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि collection is a combination of a implementers and algorithms. आप ये भी कर सकते हैं, बट सिंपल ये collection is a combination of a different type of a data in unlimited size. So we have a question is, why use the collection? आप collection क्यों यूज करेंगे? Why use the collections? So सबसे पहला फायदा है कि ability to store the any type of a data. Second, right, ability to store the unlimited data. Third, collection can grow and shrink data at runtime. Collection can grow and shrink data at a runtime. Fourth, collection can grow and shrink data at runtime. And fourth, collection provide the ready-made implementation of a data structure algorithms. These are the some types of collections. Collection provide the ready-made implementation of a data structure algorithms. This is the major benefit of a collection. Is it clear? Right. This is the major benefit of a collections. Right. मतलब collection में जैसे अगर हम array की बात करते हैं तो what is the limitation of array? Yes. देखिए कैसे होगा, if we use the array then we cannot change its size at runtime. ये array का सबसे बड़ा limitation है. राइट. अभी देखिए नोट जावा के अंदर मैं आपको बताता हूँ, बहुत लैंग्वेज में हम ऐसे कहते हैं कि array is a collection of similar data type. Yes or not? Yes students. बट आप जावा में ऐसे नहीं कह सकते. जावा के अंदर नोट, राइट, नोट in Java, if you create the array of object class, then we can store the different type of data in it. In Java, if you create array of object class, then we can store the different type of a data in it. तो आप उसके अंदर different type का data store कर सकते हैं. जैसे देखिए, अगर आप यहाँ पे आते हैं, मैं आपको array का limitation बताता हूँ, then we start a collections. अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, import java.util.start public class collection test type. गुड है की मी याची रिक्वायरमेंट आहे. हा मॅडमचा फोन आला, सी आणि शिक्षक ऋतुजाला सांगून द्या. राइट, कलेक्शन टेस्ट ऐप इज हियर. सो राइट, इफ यू थिंक हियर, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास के एरे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे इक्वल टू न्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ 5, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे obj of 0 equal to 1, obj of 1 equal to false, obj of 2 equal to good, obj of 3 equal to 5.4f, and obj of 4 equal to new of java.util.get. नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि
एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, बट अब यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि जावा के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट क्लास के एरे बनाते हैं तो हम उसमें उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। फिर अगर आप यहाँ पे आके लिखेंगे फॉर I equals to 0, I less than obj dot length is here I plus plus। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे system dot out dot println obj of I is here। collection test app dot java 7। यहाँ पे आप आइए cd फाइल सेव एज, यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए जावा सी कलेक्शन टेस्ट ऐप डॉट जावा। जस्ट वेट, जावा कलेक्शन टेस्ट ऐप है। 1 फॉल्स गुड 4.5 एंड इस तरीके से आप डेटा ऐड कर सकते हैं। देखिए बट मतलब व्हाट हैपन, अगर हम ऐसा कहेंगे कि array इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, इट मे बी अ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कोई अगर आपसे पूछे कि अगर हम ऑब्जेक्ट क्लास के अगर हम array बनाते हैं, so what happen, we can store a different type of data, but what is the limitation is here? If we think about above code, if we think about above code, then there is some limitations। अगर आप ऊपर वाले कोड के बारे में अगर आप देखते हैं तो वहां पे कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है? सबसे पहले ये है कैन नॉट चेंज इट्स साइज एट रन टाइम। नंबर 1, कैन नॉट चेंज इट्स साइज एट रन टाइम, आप रन टाइम में उसकी साइज नहीं बदल सकते, एक है। दूसरा, कैन नॉट चेंज इट्स साइज एट रन टाइम, एक। एंड नीड टू परफॉर्म ए डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन मैन्युअली। मीन्स व्हाट हैपन, अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि सेकंड नंबर की वैल्यू को डिलीट करना है, अगर सेकंड नंबर की वैल्यू को डिलीट करना है तो व्हाट हैपन, आपको मैनुअल लॉजिक लिखना पड़ेगा। यस और नॉट? इज इट क्लियर? मैंने अगर बोला आपको कि सेकंड नंबर की वैल्यू को रिप्लेस करना है, सो व्हाट हैपन, आपको मैनुअली लॉजिक लिखना पड़ेगा। अगर मैंने बोला आपको कि इसमें इसके अंदर गुड कहाँ पे है सर्च करो, तो आपको मैनुअली ऑपरेशन करना पड़ता है। मतलब व्हाट हैपन, नीड टू परफॉर्म अ डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन मैनुअली। एग्जांपल, if you want to delete some value from array, if you want to search value in array, etc, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई अगर ऑपरेशन अगर आपको करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन मैनुअल लिखना पड़ेगा, राइट। सो अवॉइडिंग दिस प्रॉब्लम, याद रखिए, अवॉइडिंग दिस प्रॉब्लम, Java provide the some inbuilt classes to us, inbuilt classes and interfaces to us, right, to interfaces to us for work with a data structure, right, data structure or ready-made implementation of a data, they work with a data structure called as collection is here, called as a collection। Avoiding this problem, Java provides some inbuilt classes and interfaces to us for work with a data structure called as a collections। मतलब collection कुछ भी नहीं है, ये ध्यान में रखिए। collection एक ऐसा ये है, right। Avoiding this problem in Java provides some inbuilt classes and interfaces to us for work with the data structure called as a collection। मतलब collection के अंदर पूरा का पूरा data structure का पूरा ready-made implementation हमें Java के अंदर provide किया है। This is the benefit of a collection। Is it clear to everyone? Yes students, please give me feedback। Yes guys? Yes, next। So कैसे, if you want to work with collection, we have some important, we have some following class and interface hierarchy। आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है java dot util dot collection, सॉरी, सबसे यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है java dot lang dot iterable, java dot util dot collection,
फिर कलेक्शन के अंदर तीन मेजर इंटरफेसेस आते हैं। लिस्ट, लिस्ट, सेट एंड क्यू। लिस्ट, सेट एंड क्यू। तो लिस्ट के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं। अभी देखिए ये भी इंटरफेस है, ये भी आपका एक इंटरफेस ही है। दिस इज ऑल्सो योर इंटरफेस, दिस इज ऑल्सो योर इंटरफेस, एंड ये भी आपका एक इंटरफेस ही है। सो जो लिस्ट है, राइट, लिस्ट के अंदर बहुत सारे क्लासेस है, लाइक एज स्टैक, वेक्टर, लिंक लिस्ट एंड एरे लिस्ट। सेट के अंदर भी देखिए, सेट के अंदर क्या क्या है, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, सॉर्टेड सेट, और इसके नीचे है ट्री सेट, DQ, प्रायोरिटी क्यूज, लिंक लिस्ट। These are the some inbuilt classes। ये जो नीचे के जो दिख रही है क्लासेस है, और इसके सामने लिखा है ये इंटरफेस है। बाकी तो जिनके सामने आए नहीं है, ये पूरे के पूरे आपके क्लासेस है। Is it clear to everyone or not? Yes students please, hello, yes guys, right। So ये जो पूरी की पूरी जो हायरार्ची जो आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी जो हायरार्ची है, इट इज कॉल्ड एज कलेक्शन एपीआई कहते हैं लोग इसे। इस पूरी डायग्राम को क्या कहते हैं, कलेक्शन एपीआई। कभी अगर आपको कोई पूछे कि आप पूरी कलेक्शन की हायरार्ची बता दे, या आप ये समझाइए कि कलेक्शन एपीआई के अंदर कौन से क्लासेस है, कौन से इंटरफेसेस है, तो आप ये डायग्राम समझा सकते हैं। इज इट क्लियर गाइस, हेलो, राइट, परफेक्ट। अभी देखिए इन दिस हायरार्ची, in this hierarchy, the topmost interfaces java.lang.iterable। इस पूरे hierarchy के अंदर topmost interface कौन सा है? In this hierarchy, we have a topmost interface is java.lang.iterable। java.lang.iterable। So किसी ने अगर कभी अगर आपसे पूछा what is the purpose of iterable interface or why iterable is a parent of all collection in Java, yes or not? देखिए ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना, इटरेबल इंटरफेस का पर्पस क्या है, राइट, और व्हाई इटरेबल इज अ पेरेंट ऑफ ऑल कलेक्शन इन जावा, राइट। जस्ट वेट 1 minute।